Good morning, dear students. In SSPM ऑनलाइन क्लासेस कोटपुतली। आज की इस वीडियोस में हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड due to a system of charges। ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, मान लीजिए अपने पास एक चार्जेस का सिस्टम है, ग्रुप ऑफ चार्जेस है, उसमें अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसमें आप देखें एक्स एक्सिस, y axis or z axis. O be the origin. Suppose that we have a group of charge or system of charge possess static charges q1, q2 up to dot 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 qn. The position vector of these static point charges with respect to origin are r1, r2, rn. Due to these static charge particles, we have to determine electric field at point P. And the distance from q1 to P, say r01, and the distance from q to P r02, and distance from qn to P r0n. Remember, the electric field due to this E1, due to Q2 at P, E2 due to Qn at En. तो अपने पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है इन विच n पॉइंट चार्जेस आर सिट्यूटेड with whose position vectors are with respect to origin respectively r1, r2 up to dot 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 rn. Then at point P, electric field intensities E1, E2, En respectively. Electric field can be defined or determined by superposition principle. Electric field can be determined by superposition principle. By superposition principle. What is superposition principle? According to this principle, according to superposition principle, the net electric field
the net electric field intensity at a point due to a group of charges is equal to the vector sum of all electric field intensity produced due to individual charges at that point. That is, कहने का मतलब क्या है? That is total electric field intensity equal the vector sum of each E2 up to dot 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 plus En likewise. If electric field intensities at point P due to point charges B Q1 Q2 up to dot 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 Qn are E1 E2 dot 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 En respectively. Therefore, net electric field intensity due to group of charge E equal one over 4 pi epsilon 0 Q1 over R01 square R01 cap plus 1 over 4 pi epsilon 0 Q2 over R02 square R01 cap plus dot dot dot
plus 1 over 4 pi epsilon 0 qn over r0 n स्क्वायर r0 n और इसका क्या, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिएगा 1 over 4 pi epsilon 0. It can also be written as I equal 1 to n qi over r0 I half whole square r01 or cap. This is your electric field intensity. Okay. Now electric field lines. Electric field lines. भला ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? It is very most important question, electric field lines from your exam point of view. या तो इसमें से एक नंबर में आएगा या 2 नंबर में पूछा जाएगा. Electric field lines. It is your important question. Define electric field lines and give its any 2 important properties. Likewise, या फिर वो पूछेगा why 2 electric field lines are not intersect each other, या फिर इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा. तो देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो इमेजिनरी होती है एंड इट स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड इन नेगेटिव चार्ज. इट इज ए ओपन कर्व. कैसा कर्व होती है? ओपन कर्व होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर electric field lines are such imaginary smooth curve drawn in electric field on which a free and isolated positive charge can move. Charge can isolated positive charge can move. Tangent drawn at any point, tangent drawn at any point of this line
tangent drawn at any point of this line of force gives the direction of force on positive charge at that point. At that point, it is also called electric flux lines. Electric flux line. तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है बेटा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वे एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जिन पर स्वतंत्र एवं पृथक्कृत इकाई धनावेश चलता है. कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सच इमेजिनरी स्मूथ कर्व drawn in electric field on which a free and isolated positive charge can move. अगर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उन पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट क्या शो करती है? उस पॉइंट पर, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम इस तरीके से खींचते हैं, देखो प्लस क्यू माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always start from positive and end in negative. Likewise, इस तरीके से it start from positive and end negative. मान लीजिए इस लाइन के इस पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ये टेंजेंट है, तो ये जो टेंजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन या इस पॉइंट पर जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान के चल रहे हैं उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगी. किसको शो करेगी? फोर्स की डायरेक्शन को. और यही बात हमने यहां बताई है, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ दिस लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. At any point of lines, now properties of lines. Now properties of lines. Properties. First property, tangent drawn at any point
tangent drawn at any point on electric field line gives the direction of electric field at that point. Second point, starting from positive charge कहां से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है। इलेक्ट्रिक लाइंस एंड्स कहां एंड होती है? एट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती है। तीसरा जो पॉइंट है, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में नहीं काटती। एंड इफ इंटरसेक्ट ईच अदर, और यदि काटें, then at intersect point, two tangents can be drawn। दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं अगर काटेंगे तो। सोर्स टू डायरेक्शंस जो किसको दर्शाएंगी? दो डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर दो टेंजेंट ड्रॉ की होंगी, अगर वो काटेंगी तो दो टेंजेंट ड्रॉ होंगी, और दोनों टेंजेंट किसको शो करेंगी? एक ही पॉइंट पर दो फील्ड डायरेक्शन को शो करेंगी एट दैट पॉइंट। विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। This is not possible। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर करके 1 नंबर में आपसे बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कर्व हैं
ओपन कर्व होती है। कैसा कर्व होती है बेटा? ओपन कर्व होती है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा आपका? चौथा पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस electric field lines are open curve. कैसा कर्व होती हैं? ओपन कर्व होती हैं। Now in fourth point, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व। कैसा कर्व होती हैं? ओपन होती हैं। ये प्लस चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पर एंड हो जाती हैं। बोथ प्लेसेस जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट हो रही हैं और जहां पर एंड हो रही हैं, दोनों ही सरफेस के कैसे होते हैं? नॉर्मल होते हैं। Both places from where electric field lines start and at where ends are normal to the surface. Electric field lines के अंदर जो नेचर होती है वो कंट्रैक्टिव नेचर होती है along with the length, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है, कंट्रैक्शन, सिकुड़ती हैं, क्योंकि यही कारण है कि अपोजिट जो चार्जेस होते हैं वो उनके मध्य क्या होता है? वही अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन। सातवें पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं अपनी लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयास करती हैं। मतलब क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सपेंड देमसेल्व्स इन नॉर्मल डायरेक्शन, यानी कि दूर दूर फैलती हैं। देखो इस तरीके से दूर दूर फैल रही है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। एक ये है तो ये इस प्रकार से, तो ये परपेंडिकुलर ये होगा, तो ये इस तरीके से है, इस तरीके से। तो इन दोनों के बीच में गैप है, काफी अधिक है, तो दूर दूर हट रही है ये। विच रिजल्ट, इसका अर्थ है कि जो अपोजिट चार्जेस जो सेम चार्जेस होते हैं उनके बीच क्या होता है? रिपल्सन होता है। और लास्ट पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इक्विडिस्टेंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी इक्वल डिस्टेंस पर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो वहां कौन सा फील्ड डेवलप होगा? वहां पर बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। और आज के इस वीडियोस में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसकी चर्चा करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसकी चर्चा करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल की चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।